Thank you for joining us for today's webinar. My name is Mayank Shah, and I am the Senior Lecturer in Electrical Engineering Department at Parul Polytechnic Institute. Now, today we are presenting the webinar on Let's Find Out Your True Potential, presented by Mr. Pitam Sir. He is the chairman of Promise Yourself and having a more than 5 years of experience as a motivational speaker and life coach at Promise Yourself. Promise Yourself inspire and encourage the individual to realize their true potential. Every lines of video and his thoughts will solve the problems of your life, and he will guide your life so that you can make the right decision in your life at the right time. Promise Yourself work to inspire and inform the people, helping them to realize their true potential. He make the best and powerful motivational speech video to spread the positive and motivate other people, helping them to follow their dreams and achieve their goals in a life. So just a little reminder to all before we get started. If you have any query during the presentations, please type your questions into the chat box. I will bring them up during the presentations, and we will have the time for the questions at the end of sessions. So before we go further, I want to review the functionality of today's webinar, which is the Let's Find Out Your True Potentials. We all know that the teaching, training, speaking and coaching is the one of the most rewarding, gratifying and celebrated professions, as the needed for the upskilling, reskillings and continuous learning are sky high. If you are aspire to be a powerful force of life to change in the society by impacting lives, then the training and coaching can be the best way forward to you. So over today's webinar, we'll help you to discover useful knowledge and facts about the real life and positive thinking. If you are searching this type of webinar area, then welcome to this webinar. You can understand all the basic things to make a good life. So now, without further ado, we will turn the time over to the Mr. Pitam sir. I hand over all the sessions to the Mr. Pitam sir. Over to you, sir. Yes, sir. Pitam sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Today we are presenting how to stand out from crowd. जैसा कि हमको पता है, जिंदगी में हमको ना भीड़ से आगे हटना पड़ता है। तो भीड़ से अलग करने के लिए आज हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमको भीड़ से कुछ अलग करना है तो कुछ अपने तरीके अलग करने पड़ेंगे, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आज हम उसी बेस पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले मेरे जितने भी हैं यहाँ पर व्यूअर हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नाउ हियर, अब मैं एक बात बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको कि उम्मीद आप पर हर किसी की होती है। आपकी अपने आप से उम्मीद रहती है कि हम जिंदगी में क्या और कैसे करें। तो हमको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि जो हम जिंदगी में काम कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ का मोटो है या फिर जो हमारा एम है, वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमको किस अंदाज में करना चाहिए, वो हमको पहले समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक सबसे बड़ा ऑप्शन बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ा आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर अपना पैशन चुनना है तो आपको पैशन कैसे चुने। होता क्या है ना, हमको यही नहीं पता चलता कि हमारा किस चीज में टैलेंट है, हम अपने आप को कैसे समझें कि हमारा इस चीज में पैशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वरुण कुमार करके एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनका जो प्रोफेशन था, पहले उन्होंने सोचा था कि मैं एक नासा कंपनी में जाऊंगा, नासा में जॉब करूंगा। लेकिन उन्होंने पहले ही सोच रखा था, उस हिसाब से प्री प्लान था, उनका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एक चीज याद रखो कि पैशन जो होता है ना आपका, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। तो यानी कि आप जो गोल सेट कर रहे हो वो आप ऐसा रखो कि वो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि आपको जरूरत पड़ने पर अगर उसको चेंज करना पड़े तो आप चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी ना बचे आपके पास, तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर ये मेरा उद्देश्य था और मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दूसरा उद्देश्य अपने साथ ले सकता हूँ। तो इसी में आपको ज्वाइन, मतलब जो चीज जोड़ना वो ये है कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो गोल है, वो ऐसा रखो कि अगर जो गोल है मेरा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो अगर इसमें मैं कुछ भी इधर उधर होता है, मुझे लग रहा है कि इसमें मैं
ये चीज नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो आप उसको चेंज कर लो। कहते हैं ना, अगर आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो तो गलत रास्ते पे 10 कदम चलने से बेहतर है आप सही रास्ते पे सिर्फ 5 कदम चलो। वो जो 5 कदम चलोगे वो आपको 10 कदम से ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि रास्ता वो चुनो जो आपको कुछ देने वाला है। चलिए अब आगे आगे आपको बताने वाले हैं। देखो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, हर किसी की लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम दूसरे वाले को सेटिस्फाई कैसे करें। तो इसका मैं आपको फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। फ्रेमवर्क होता है वो है एनआईसी फ्रेमवर्क। तो एनआईसी का मतलब होता है नीड्स, और आई मतलब इंटरेस्ट, सी मतलब कंसर्न। यानी कि आपको सबसे पहले जो आपके सामने है, जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, या जो आपका टीचर है, जैसे स्टूडेंट है उसके सामने जो टीचर है, या फिर कोई प्रोफेसर है, जो भी है, तो आपको पहले उनका नीड समझना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या प्रेजेंट करवाना चाहते हैं। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या है। उसके बाद आपको उनका इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि वाकई में जो आपका फील्ड है, जैसे मान लीजिए किसी का मैकेनिकल है, किसी का इलेक्ट्रिकल है, या किसी सिविल है, जो भी है, तो आपका जो फील्ड है उस फील्ड में आप जो जा रहे हो, तो उसमें उन लोगों का इंटरेस्ट है भी या नहीं, जिसमें आप अपना अपना मार्गदर्शन देना चाह रहे हो, जिसमें आप अपना फोकस करना चाह रहे हो। तो आपको पहले ये भी समझना आना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कंसर्न, मतलब कि उसमें आपको अमल करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं, देखो होता क्या है ना, 3 चीज होती हैं। कोई भी चीज करने के लिए आपको 3 चीज फॉलो करनी पड़ती है, मन वचन कर्म। ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है जिंदगी में सफल होने का। यानी कि होता क्या है ना, सबसे पहले हमको कोई भी चीज होती है वो हमारे मन में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे आईटी का एग्जाम क्रैक करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, या फिर आपने मान लीजिए कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, या फिर आपने मान लिया कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो उसके बाद अगर आपने मन में विचार कर लिया कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में सिर्फ वचन लेने से काम नहीं चलेगा। यानी मन में आपने सोच लिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको वचन भी लेना पड़ेगा कि हाँ, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर आई एम IAS, आई एम IPS। तो उसके लिए आपको वचन भी लेना पड़ेगा। वचन लेने से भी काम नहीं चलेगा, आपको उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा। कर्म किस बेस पे करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आप उसको कितना इंप्लीमेंट करते हो अपने ऊपर। इसमें आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो कर्म आपकी गोल के इधर उधर ही होना चाहिए। नहीं कि आपका गोल है मान लीजिए डिफेंस एग्जाम में जाने के लिए, या फिर IAS IPS बनने के लिए, लेकिन आप फील्ड चुन रहे हो अपना साइंस का या अपना मेडिकल का, तो वो आप फोकस करो पहले तो कि आपका जो फील्ड है, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, उस फील्ड के लिए आप अपना इतना काबिल बना लो कि आपकी सफलता आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। और ये हकीकत है कि आज की डेट में ना कंपटीशन भले ज्यादा है। देखो, भीड़ उधर भगती है जहां भीड़ आगे जा रही होती है। एक सबसे थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बार पता है क्या होता है, जब भीड़ ट्रेन में बहुत भीड़ हो रही होती है और लग रहा है लोगों को हम ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे, तो उस टाइम जब आपको लगे कि आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, तो आप ना उस भीड़ के आगे जाके खड़े हो जाना। तो भीड़ आपको धक्का मार मार के ट्रेन के अंदर घुसा देगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में जाके खड़ा होना पड़ेगा, उनसे उनके विचार सुनने पड़ेंगे, उनके इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जानना पड़ेगा, वो अपने काम को किस तरीके से करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। भले ही हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत सारा टकराव, बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज इतनी जल्दी आती नहीं है, हर किसी को इतना आसानी से कोई अपने में इन्वॉल्व नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप सोचो कि मैं एक हाई कंपनी के साथ काम करूं, किसी भी हाई मोटिवेशनल स्पीकर के साथ काम करूं, तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए पहले आपको अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि यस आई एम फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। उसको आपको कुछ प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको उस प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को तैयार करो उस तरीके से कि सामने वाला लगे कि हाँ दिस इज अ जेंटलमैन फॉर अस, मतलब वो बंदा आपके लिए है। तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। हमारे यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें मैं आपको एक टॉपिक थोड़ा बताने वाला हूँ काम का, कि इंटर्नशिप हर किसी की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो कोई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो, चाहे किसी बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे MBA स्टूडेंट हो। तो क्या है, इंटर्नशिप आपकी जो रिज्यूम है उसमें 4 चांद लगा देता है। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि अगर किसी को इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है तो वो इंटर्नशिप के मौके को ना छोड़े, वो इंटर्नशिप जरूर करे। अगर किसी अच्छी कंपनी का मिल रहा है तो उसको विशेष रूप से करे, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप कर ले रहे हो तो उससे आपको सबसे पहली तो बात यह है कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, यानी पहली बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है किसी कंपनी विजिट करने का, अच्छे अच्छे और अन्य लोगों के साथ काम करने का। अब देखो, मैं एक चीज बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डिपार्टमेंट है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय कोई भी है, उसका मान लीजिए HR डिपार्टमेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको प्रमोशन कराना है, तो अगर आप केवल HR डिपार्टमेंट की नॉलेज रखोगे तो सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ना
कहते हैं ना, एक आउट ऑफ वे से काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी तो नॉलेज रखना ही रखना है, उसके साथ साथ जो अन्य डिपार्टमेंट है उनसे भी नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एचआर तो है ही है, उसके अलावा सेल्स का हो गया, या फिर आपका एजुकेशन का हो गया, या फिर कोई एंट्रेंस का डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट है उनकी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। उनमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको, अपना जो डिपार्टमेंट उसमें डेप्थ में जाना है, लेकिन उनके बारे में जानना पड़ेगा कि जैसे सेल्स का, तो सेल्स वो किस तरीके से कर रहे हैं। कि मान लीजिए अगर कल की डेट में सेल्स का डिपार्टमेंट आपके लिए दे दी जाए किसी भी काम टाइम के लिए, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, तो वो आपको जानना आना चाहिए। देखो, आपको अपने वर्क में इंटरेस्ट दिखाना होगा, सो इंटरेस्ट इन योर वर्क, रेडी टू टेक न्यू चैलेंज, आपको नए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। वो चीज ये है कि आप सबसे पहले तो आप अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल ऐसा बनाओ कि फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं कि आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, एक दिन फॉलो करो उसके बाद फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। पहले आप धीरे धीरे चेंज करो, पहले ऐसा रखो कि आप उसको फॉलो कर पाओ, धीरे धीरे उसमें आप स्टेबिलिटी लाते जाओ। जब आपकी स्टेबिलिटी आती जाएगी तो एक दिन क्या होगा कि आपको टाइम में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट काम है ना, उसके लिए आप पहले लिस्ट बना लो। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि किसी व्यक्ति से किसी ने फोन पर किया कि भाई आपके पिताजी की कुछ दुर्घटना हो गया है, तो आप तुरंत हड़बड़ा जाते हो और तुरंत आप एक्शन लेते हो। तो वही चीज है कि आदमी ना एक्शन उस तरीके से लेता है जिस तरीके की सिचुएशन रहती है। सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा। तो आपके सामने जो गोल है ना, वो ऐसा रखो कि हर हालत में आपको उसके प्रति उत्तरदायी रहना पड़ेगा। उसके लिए काम करने के लिए आपको तत्पर रहो। पैशन जरूरी नहीं है कि आपका जो पैशन है वो आपका गोल हो, मतलब आपकी गोल में काम करे। कभी कभी होता क्या है, हम ऐसा पैशन रखते हैं वो हमारे गोल में बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, पैशन आपका गोल के इर्द गिर्द रहना चाहिए, कि आपका जो पैशन है जिससे कि आपको उसको करने में खुशी मिले। चलिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है ना, आज की डेट में हर कोई पर्सनल ब्रांड पर काम करता है। पर्सनल ब्रांड पर चाहे कोई भी हो, चाहे हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, चाहे कोई भी है, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करता है। हकीकत बात है कि जिस दिन आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन जाएगी उस दिन आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सहारा लेना, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए पहले तो आपको अपने आप को, जो आपका फील्ड है, उतना स्ट्रांग बना लो कि सामने वालों को आप समझ में आना चाहिए कि ये इसका फील्ड है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आपको लगातार मोटिवेशनल पोएट, मोटिवेशनल कोटेशन, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल सेमिनार करने पड़ेंगे। तभी सामने वाले को समझ में आएगा कि यस, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, ही इज अ इंजीनियर। तो मतलब आपको अपना फील्ड दिखाना पड़ेगा सामने वालों को, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ, कि आप उस फील्ड के हो। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए वो चीज पर काम करो, उस चीज पर अमल करो, जो भी आपका फील्ड है। उसके बाद जो आपका फील्ड है उसको फिर आप बूस्ट करो। बूस्ट मतलब उसको आप स्पॉन्सर करो। जैसे मान लीजिए किसी का कोई भी फील्ड है, अब आप उससे रेवेन्यू कमाना चाह रहे हो, तो रेवेन्यू कमाने के लिए उसमें आपको, जैसे किसी का कोई मान लीजिए कोई सेमिनार करते हैं, तो सेमिनार करने के लिए पहले हम प्रमोशन करना पड़ता है, यानी कि इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया। इससे क्या होगा, जो आपका जहाँ पर जो रीच हो रहा था ऑडियंस तक, वो मान लीजिए केवल 10,000 तक पहुंच रहा था, लेकिन आपने स्पॉन्सर कर दिया, तो जो आपका स्पॉन्सर करने की वजह से ऑडियंस का जो लिमिट होगा वो 1 लाख तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें पैसा एक्सपेंड करते हो। जितना आप पैसा एक्सपेंड करोगे उतना ही आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, उतना ही आपका अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, उतनी ही आपकी ऑडियंस बढ़ जाएंगी। ये आप ट्रस्ट करो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो, अब ना हमको क्या कोलैबोरेशन यहाँ पर ये वो टीचर ने हटा दिया है, वैसे ही जल्दी खराब कर दिया। देखो, अब ना एक बात इंपॉर्टेंट, हर कोई सॉल्यूशन चुनना चाहता है, हियर नो नहीं सुनना चाहता है। तो आपको भी अगर नो पसंद नहीं है तो आपको भी हर किसी के सामने यस करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको काम दिया,
जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में होता क्या है कि बच्चे समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। कहने का मतलब एक विंडो खुली हुई है, उसमें से वो चीटिंग कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज यकीन मानिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो किस तरीके से, ये आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए उस नॉलेज का आपको कल की डेट में जरूरत पड़ता है, तो आप उस नॉलेज को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस नॉलेज को अपने माइंड में लिया ही नहीं। देखो, नॉलेज तो किताबों में, कॉफियों में और आपके डिजिटल में, आपके गूगल पर बहुत सारी है, लेकिन आपके माइंड में कितना नॉलेज है वो सिर्फ आप ही जानते हो। और आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करने का, कितना प्रेजेंट कर सकते हो किसी सामने, वो आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी पर काम करता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है अपने आप की नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की, तो आप यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपका जो फील्ड हो, चाहे भले ही फिर आपके लिए एक वैकेंसी क्यों ना हो, वो एक वैकेंसी भी आपकी होगी, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है रिप्रेजेंट करने की, आपके अंदर वो टैलेंट है अपने उस पैशन को, अपने उस गोल को दिखाने की। तो आपको ये चीज समझना होगा कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है दिखाने का, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना वो कर सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज मानो आप, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। होता क्या है ना, एक बार कभी क्या होता है, जैसे कोई टीचर से क्वेश्चन पूछने जाता है, जब कोई बंदा टीचर से क्वेश्चन पूछने जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक ही बार में आपका रिप्लाई कर दें। हो सकता है वो किसी काम में लग रहे हो, अपने आप को नहीं बता पाए। तो बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो एक ही बार में हार मान जाते हैं, अरे टीचर बता ही नहीं रहे तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और अपने अंदर एक ऐसा जज्बा रखो कि हाँ, मुझे तो जान के रहना है। आप दोबारा जाओ, कहते हैं नॉक एवरी डोर। आपको दरवाजा, हर दरवाजा पीटना है, बार बार पीटना है। एक ना एक दिन तो जो आपको बताने वाले टीचर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, जो भी है, वो एक ना एक दिन पहलेंगे, वो सोचेंगे भाई एक डेली आता है, मतलब उसके अंदर वो चीज है जो सीखना चाहते हो, वो उनको सिखाना ही चाहिए। तो आप जब तक जाओगे, मान लीजिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लेकिन 5वें दिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। एक बार हमारी जब प्रोफेसर थे, उन्होंने पास ना, वो बहुत बिजी थे, फिजिक्स के प्रोफेसर, तो उनके पास टाइम नहीं रहता था। लेकिन हम उनके पास बार बार जाते थे, बार बार जाते थे। उन्होंने उन्होंने एक शेड्यूल बना लिया था कि जो बंदा बार बार आ रहा है, इसके मतलब वो समझ जाते थे कि हाँ, इसके अंदर वो जिज्ञासा है जानने की, तो वो उसको जरूर बताते थे। तो आप यकीन मान लीजिए, अगर बार बार जाने से आपका काम बन रहा है, तो आप जाइए और देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि भिखारी होता है। भिखारी मान लीजिए 10 दर पर दर मतलब भीख मांगता है, मान लीजिए 10 दरवाजों पर उसको भीख नहीं मिली, तो 11वें दरवाजे पर जाएगा, तो उसको ऐसा अनुभव हो जाएगा कि वो किस तरीके से टॉकिंग करे भीख मांगने के लिए, तो उसको हो सकता है 11वें दर पर भीख मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मान लीजिए नॉलेज पहले टीचर से किसी से नहीं मिला, लेकिन सेकंड टीचर से भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बार बार किसी टीचर के बार बार पास जाओगे, किसी अन्य टीचर के पास जाओगे, तो आपको नॉलेज वो मिल जाएगी जो आपको चाहिए। और नॉलेज लेने के एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप जितना यूज कर सकते हो उसका यूज करो, लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखो कि नॉलेज आप सही रूप में लो। ऐसा नहीं कि नॉलेज बहुत सी होती है, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं रहता है। तो आपको पहले एनालिसिस कर लो कि जो यहाँ से हम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका कॉलेज का प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई वेबसाइट है, या कोई भी है, पहले आप उसका एनालिसिस कर लो कि वाकई में इसका जो डाटा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसके जो जो भी डला है उसमें कंटेंट, वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन है, तभी आप उस पर अमल करो, तभी इसको आप इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि आज की डेट में ना बहुत ज्यादा फेक फेक न्यूज, फेक खबर, फेक कंटेंट बहुत मिल रहा है, तो आप उनसे बचना है। देखो, साइबर कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साइबर सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। आपको ये चीज अगर आपने नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो जाए। देखिए, आज की जिंदगी में ना हर किसी को एक ये रहता है कि मैं पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ कैसे रखूं, पब्लिक का ध्यान मेरी तरफ कैसे आए। तो पब्लिक का ध्यान आप अगर अपनी तरफ करना चाहते हो, पब्लिक का अटेंशन आपकी तरफ रहे, तो आपके अंदर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो मैं उन्हीं स्ट्रेटेजी पर काम करने वाला हूँ। देखो, कहते हैं ना, स्पेशल दाढ़ी, स्पेशल कपड़े, स्पेशल फैशन रखने से आपकी जो पब्लिक है, जो आपके ऑडियंस है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ ध्यान दे। आपको अगर ऑडियंस से ध्यान खींचना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनकी जरूरत का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप मान लीजिए मैकेनिकल के प्रोफेसर हैं, और आप मान लीजिए टॉम पढ़ाते हैं या सोम पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो आपको जो आपका सब्जेक्ट है, उस फील्ड में आपको इतनी अप्रोच रखनी पड़ेगी कि आपके ऑडियंस आपके इर्द गिर्द इतने हो जाएं कि आपको टाइम ना मिले कि उनको मैं कैसे हैंडल करूँ। जिस दिन आपको
जिस दिन आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैं उनको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो एबिलिटी है ना उनको हैंडल करने की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो किसी ने कहा है ना कि जितना जैसे हम किसी गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं मान लीजिए, तो वहां सड़क खराब रहती है, तो आप कहो कि हर जगह की सड़क बहुत अच्छी बन जाए, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो हर चीज अपने हिसाब से नहीं हो सकती है, तो वहां आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद के जूते पहनने पड़ेंगे। कहते हैं ना, अगर आप जूते पहन लोगे सड़क बिछ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बचे तो आपके पास तो जूते हैं ना। तो कहने का मतलब आपको सिचुएशन को खुद से हैंडल करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, अगर आपको जिंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ अलग दिखाना है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए आपका बगीचा है, बगीचे में आप झाड़ी वगैरह या फिर कांटे वगैरह पैदा करना चाहते हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे। लेकिन आप वहीं फूल पौधे अच्छी सुगंध लेना चाहते हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, डे टू डे इरिगेशन करना पड़ेगा, डे टू डे उनकी देख रेख करनी पड़ेगी प्लांटों की, उनमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, बीज देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वही है, अगर आपको जिंदगी अपनी अच्छी बनानी है तो अपनी जिंदगी में डे टू डे नया कुछ सीखना पड़ेगा। देखो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा कहता है ना कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई कहता है कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस चीज को कैसे एनालिसिस करोगे, हाँ उसके पास वास्तव में 5 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए अगर कोई बंदा कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, किसी भी कंपनी में जाता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाता है, चाहे प्राइवेट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाता है, गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी जाता है, उसने मान लीजिए 1 साल में जो काम सीखा, उसी काम को बार बार मतलब दोहरा रहा लगातार 4 साल तक, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस ही है रियल में, रियल बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑन पेपर तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, लेकिन रियल में उसके पास केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने जो काम 1 साल में सीखा था वो उसी काम को बार बार रिपीट कर रहा है। जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो वाकई में हम देखें तो उसके माइंड लेवल पर तो एक ही काम रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं जो दूसरा बंदा है, उसने 1 साल कोई और काम सीखा और दूसरी साल और कोई काम सीखा, मतलब लगातार वो सीख रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको कर रहा है, मतलब लगातार उसने 5 साल तक अलग अलग काम सीखे, अलग अलग काम को सीखकर अलग अलग काम किया, तो उसके पास वाकई में 5 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है। इस तरीके से हम एक्सपीरियंस को एनालिसिस करते हैं। और आपको देखिए, आपके पास ऐसा ऐसा आप कभी मत सोचिए कि मेरे पास नॉलेज आ गई है तो मैं अब मुझे नॉलेज की कोई जरूरत नहीं। नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, आपका चाहे जो फील्ड है या नहीं है, आपको जो नॉलेज मिल रही है लेकिन आपको लग रहा है कि ये मेरे काम आ सकती है, उस नॉलेज को आप जरूर लो, जरूर लो। हो सकता है कि आज उसका काम नहीं आए, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पर उसका जरूरत पड़ सकता है आपको। तो आपको इस चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि मेरा जो फील्ड है वो नॉलेज का भले ही नहीं, मतलब जो मेरा फील्ड है, मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ फिलहाल में काम नहीं आ रही, लेकिन वो आगे आ सकती है। पर लेकिन फोकस आपका जो फील्ड है उस पर आपको ज्यादा करना है। देखो आपको ना ऐसा काम करना पड़ेगा कि पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ जाए। जैसे होता क्या ना, पब्लिक का ध्यान तो गलत कामों पर भी जाता है। आप ना कुछ भी करोगे, टांग खींचने वाले बहुत आएंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जज्बा रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हाँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, आई एम राइट, आई एम इन राइट वे, मैं मतलब सही रास्ते पर हूँ। तब आप समझ लेना कि आप अगर सही, आपने सोच लिया कि मैं सही रास्ते पर हूँ, तो फिर सामने वाला चाहे जो कहे, आप तब तक मतलब उनकी सुनो जब तक कि उनको ये ना दिख जाए, मतलब आपका सफलता सामने ना आ जाए, तब तक उनको आपको कोई सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, खुद ही वो यकीन करने लगेंगे वाकई में जो कर रहा था वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है, यूट्यूबर होता है, कोई भी होता है, जब शुरू शुरू में वो वीडियो बनाते होते हैं, तो उनके सामने बहुत सारे लोग आते हैं कि क्या कर रहे हो। जब कोई स्टूडेंट होता है, जब शुरू शुरू में सक्सेस नहीं मिलती है, तो कहते हैं तुम अब नौकरी नहीं लगे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है, क्या करते हो। मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं करना है। कहते हैं नेवर गिव अप। आपको कभी मतलब कि नाराज नहीं होना अपने आप से, कभी उसमें आपको कमी नहीं लानी अपने जज्बे में। आपको अपना जज्बा कायम रखना है। भले ही आप 1 साल बाद सफल हो, पर लेकिन आपको अपने उस गोल पर टिके रहना है जब तक कि आप उसमें सफल ना हो जाओ। जिस दिन आप उस गोल को पाल जाओगे, जो सामने वाला उस दिन कह रहा था ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वही सामने वाला आकर तुमसे ये कहेगा वाकई में आप सही कर रहे हो।
तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को एक चेंज करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, हम किसी भी बॉडी को जब चेंज करते हैं तो उसको पहले बहुत गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो आपको ही ऐसे तपाना पड़ेगा। जिस दिन आपको तपाना सीख गए अपने आप को, जिस दिन आपने ना सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया, क्रिटिकल सिचुएशन को, यानी कहते हैं ना बहुत कठिन परिस्थिति में आपने जीना सीख लिया, कहते हैं ना जब कुछ नहीं होता आपके पास तब भी आपने अपने आप को हैंडल करना सीख लिया, तब भी आपने अपना जज्बा कायम रखा, तो आप यकीन मानिए जितने बड़े लोग बने ना वो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फैक्ट पर काम करके बने। उन्होंने जितनी भी बड़ी सिचुएशन, जितनी बड़ी कठिनाई है, वो कभी उस कठिनाई से दूर नहीं भागे। उन्होंने उस कठिनाई पर काम किया है, उस कठिनाई पर काम करके वो आगे बढ़े हैं, जिसके कारण आज उनको दुनिया जानती है। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे आपके जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, जितने भी मैथमेटिशियन हों, चाहे जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हों, डॉक्टर विवेकानंद, सोनू शर्मा, जो भी हैं, उज्जवल पाटनी, जितने भी बड़े बने तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो आपको वही इम्प्लीमेंट करना है। देखो होता क्या है ना, समाज में लोगों का जो दिखाने का तरीका और जो करने का तरीका बहुत अलग होता है। आपको जो दिखाया जाएगा ना वो वाकई में वैसा करते नहीं है। वो मतलब दिखाने का जो प्रारूप होता है, कोई भी चीज का फॉर्मेट वो कुछ और होता है, लेकिन जो करने का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लोग आपसे सिर्फ दिखावे वाला सीन दिखाते हैं, वो आपको करके नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आपको, लेकिन आपको उनको करके दिखाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच प्रीतम सर। सर यहाँ पे हमारे ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस आए उनके, तो एक थोड़े स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, उसमें से मुझे जो इंटरेस्टिंग लगे हैं, जो काम के लगे, मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। निश्चित करके एक स्टूडेंट है और वो बताना चाहता है कि उसने भी एक यूट्यूब चैनल चालू करने की वो सोच रहा है, लेकिन वो कौन से टॉपिक के ऊपर करे जिससे वो आगे बढ़ सके। उसका अभी उसको आइडिया नहीं है कि वो क्या इंटरेस्ट ऑफ एरिया उसका क्या है, वही उसे नहीं पता चल रहा है। उसको सभी चीजें अच्छी लगती है, तो वो क्या कर सकता है अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया फाइंड करने के लिए। ओके सर, देखिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहा है या भी जो भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाना चाह रहा है, सबसे पहले उसको अपने अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ। देखो होता क्या है ना, हम ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीजों को देख करके, कि जैसे मान लीजिए आज मैं एक सेमिनार कर रहा हूँ या फिर वेबिनार कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि सामने वाला देखता है भाई ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो शायद हम भी कल को कर सकते हैं। लेकिन देखिए पहले आपको उस तरीके का अपने अंदर वो पैटर्न लाना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, होता क्या ना, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जब घोड़े पर जो घुड़सवार बैठा होता है, वो घोड़े को जब चला रहा होता है, वो 2-4 बार कहता है ना उससे जंप, तो जंप कर रहा होता है, लेकिन अगली बार मान लीजिए वो जंप नहीं करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो पैटर्न बन चुका है। तो वही है, अगर आपने अपनी जिंदगी में वो पैटर्न बना लिया कि हाँ मैं मोटिवेशनल वीडियो बना सकता हूँ, मैं मोटिवेशनल सेमिनार कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका चाहे जो फील्ड, चाहे आपको जो मतलब क्वालिटी हो, भले ही आपकी लो क्वालिटी हो सकती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आपको उसके लिए दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना चैनल बना सकते हो। पर लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि आप जो फील्ड चुन रहे हो, आप किसी फील्ड चुन रहे हो, मोबाइल फोन का चुन रहे हो या फिर किसी किसका बनाना चाह रहे हो कंटेंट, किसी गवर्नमेंट जॉब का बना रहे हो, किसका बनाना चाह रहे हो, तो आप वो देखो कि आपके पास उसकी नॉलेज है या नहीं। अगर नॉलेज है तो आप अपना वीडियो बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो। यूट्यूब चैनल बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उस पर ग्रो करना बहुत कठिन है। उसकी देखो आजकल ना बहुत ज्यादा फैक्टर आ चुके हैं जो कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए, तो अब आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है यूट्यूब पर ग्रो करना, आप आराम से ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप पर, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने चैनल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और खुद सीखना पड़ेगा और दूसरों को सिखाना पड़ेगा। और एक चीज जान लो कि आपको काम करके वो देना पड़ेगा जो उस ऑडियंस की, जो आपके श्रोता हैं, जो आपके मतलब देखने वाले हैं, वो उनकी जरूरत है, तभी आपका चैनल चलेगा। थैंक यू सर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू से इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर? आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के अंदर कौन से बड़े फेजेस है जो डिफिकल्ट लगते हैं सर? उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। मोटिवेशनल स्पीकर को क्या चैलेंजेस आते हैं? ओके सर, ओके सर, देखिए मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बनना इतना आसान नहीं है, चीज पर जाने की टैलेंट है। आप जो सामने वाले लोग हैं उनको आप हैंडल कर सकते हो, उनको सामने अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हो, तो आपका मोटिवेशनल स्पीकर बनना आसान है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बनने में और एक काउंसलर बनने में बहुत बड़ी बात है।
आप पहले ये चीज जान लो कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो कि आपके अंदर वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाली ताकत है भी या नहीं, आपकी आवाज में वो क्वालिटी है कि नहीं, आपकी जो कहते हैं ट्यूनिंग लेवल है, आपका जो नॉलेज लेवल है वो है कि नहीं। पहले आपको अपने अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि आप खुद का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हो सकता है किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा लो, उनसे जानो कि मैं अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहा हूँ तो क्या मैं ये चीज, जैसे आप कोई छोटा वीडियो बनाइए, उनके पास वो वीडियो भेजो, अगर वो वीडियो वो आप एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि हाँ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। फिर वो आपको ये भी बता देंगे कि हाँ आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना। देखो, इसमें ना बहुत सारी डिफिकल्टी ये आती है कि आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में देखो, आपको ना शुरुआत में कोई एडिटिंग वाले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एडिटिंग वाले उसके ऊपर काम वही आपको एडिटिंग करके देते हैं। अदरवाइज वो जब आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं रहेगा, आप अच्छा ही वीडियो नहीं बनाओगे, तो एडिटिंग वाले भी आपकी वीडियो हायर नहीं करेंगे। तो आप पहले ऐसा कंटेंट रखो, ऐसी वीडियो बनाओ जिससे कि आपको अगर एडिटर की जरूरत पड़े तो आपको एडिटर मिल जाए, आपको किसी वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत पड़े तो आपको वेबसाइट डिजाइनर मिल जाए। तो आपको पहले अपना एक कहते हैं ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा मोटिवेशनल स्पीकर का। जिस दिन आपका ब्रांडिंग बन जाएगा तो आप कोई टेंशन मत लो, आप एक ना एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन जाओगे, आप किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यकीन कर दिखा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मोटिवेशनल बुक पढ़ना पड़ेगा, मोटिवेशनल वीडियो सुनना पड़ेगा। देखो, मोटिवेशनल डाटा बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, कुछ नए एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे जो कि अब तक की है ही नहीं, तभी तो आप मोटिवेशनल स्पीकर कुछ अच्छे बन के आओगे। और क्या आओगे, नहीं आप वही चीज रिपीट करोगे तो फिर आप एक अच्छे लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे मैं छोटा लेवल का एक कितना एक जिले लेवल का, कॉलेज लेवल का, स्कूल लेवल का बन के रह जाऊं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अच्छे लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो उसके लिए ना आपको एक अच्छा नॉलेज, अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके सर? जी थैंक यू सर। जी सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जैसे मोटिवेशनल स्पीक में ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है, ऐसा कौन सा टॉपिक होता है कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट ऑडियंस को? यस सर, ओके सर। देखिए सर, यस यस सर, देखिए सर, इसमें क्या है ना, देखो ऑडियंस को, यस यस सर, जी सर, जी सर, देखिए ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि जब आप ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो, पहले आप ये देखो कि हमारे ऑडियंस कौन है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, या फिर किसी गांव देहात के लोग हैं, या फिर किसी कहते हैं ना रिलीजियस टाइप के लोग हैं। तो आपको पहले उनका लेवल समझना पड़ेगा कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइप का है। अगर स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट लेवल का डाटा, स्टूडेंट लेवल का कंटेंट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट लेवल की नॉलेज कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके जो काम की चीज़ है वो आपको उसमें जोड़नी पड़ेगी। तो तभी वो ना आपके इंटरेक्ट होगा जो आपका ऑडियंस है। और जहाँ आपका ऑडियंस इंटरेक्ट होता है वहीं जो मोटिवेशनल स्पीकर है और जो ऑडियंस है उनमें अच्छा दिलचस्पी आती है, अच्छा इंटरेक्शन बनता है, अच्छा काम चलता है उनका। लेकिन मान लीजिए अगर आपका ऑडियंस किसी मेडिकल लेवल का है, मेडिकल क्लास का है, और आप उसको नॉलेज दे रहे हो मैथमेटिक्स की, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका वो काम का ही नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप छोटा मोटा टॉपिक दे सकते हो बीच में लेकर के, वो चल जाएगा, लेकिन आप टोटल शुरू से लेकर एंड तक वो टॉपिक दे रहे हो जो उनके काम का नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है, वो नहीं चलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए पहले कि जो आप टॉपिक शेयर कर रहे हो वो उनके काम का होना चाहिए। ऑडियंस आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, आप इस चीज को टेंशन ना लें। आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि जो आप डाटा बना रहे हो, जो आप कंटेंट बना रहे हो, वो ऑडियंस का काम का होना चाहिए। चाहे फिर किसी भी उसमें जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप विजिट करने के लिए जा रहे हो, सेमिनार करने के लिए जा रहे हो, पहले आप उसका एनालिसिस कर लो कि वो यूनिवर्सिटी में क्या आपको दिलाते हैं, क्या वो आपसे चाहते हैं, आप उस हिसाब से कंटेंट बना लो अपना। फिर आप उसको प्रिपेयर कर लो कि मुझे जो कंटेंट है वो किस तरीके से सामने वाले के सामने शेयर करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, पीपीटी बना के करना है, डायरेक्ट करना है, या फिर किस तरीके से करना है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि देखो आप ना पहले ऐसे इस तरीके से तैयार कर लो अपने आप को, सामने वाले को लगे कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है। आपको अपना डाटा उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। जिस दिन आपका डाटा उस तरीके से तैयार होगा कि आप सामने वाले को ऐसे दिखा दो कि हाँ वो डाटा आपका खुद का डाटा है और आपने कहीं से नहीं लिया है, तो आपके पास ना वो विश्वास आने लगेगा, आपका खुद का विश्वास आने लगेगा, दूसरे लोग भी आपका विश्वास करने लगेंगे। ये चीज होती है सर।
Yes, yes, sir. It's look like we have covered all the question now. So, Pritam sir, is there any else you ओके wanted to सर। cover before we wrap up? प्रीतम सर, लास्ट में कंप्लीट करने से पहले कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? जी सर, जी सर, जी सर। देखिए, यस। लास्ट में मैं खत्म करने से पहले इस सेमिनार को मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, देखिए आपका चाहे जो फील्ड हो, मैं लास्ट में यही बात कहना चाह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आपका जो फील्ड चुनने वाले हो, आप चाहे जिस ब्रांच से हो, आप चाहे जिस प्रोफेशन से हो, आपका चाहे जो भी है, सबसे पहले आपको अपने अंदर एक यकीन बनाना पड़ेगा, खुद के अंदर बिलीव बनाना पड़ेगा, खुद से विश्वास करना पड़ेगा, खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। भले ही वो दूसरी की नज़र में सही नहीं है, लेकिन वो काम आपकी नज़र में सही होना चाहिए 101%। और जिस दिन वो आपका काम है वो आपका नज़र में सही हो गया, तो भले ही सामने वाले की नज़र में सही नहीं है, तो एक ना एक दिन वो सामने वाले की नज़र में भी सही हो जाएगा। पहले इस बात को आप दिमाग में रख लो, गांठ बांध के रख लो। ये बात बिल्कुल पक्की है, जिस दिन आपने अपने अंदर विश्वास रख लिया है ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने वो खुद का विश्वास है और खुद के विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन आप अगर किसी विश्वास करोगे तो वो हो सकता है आपका विश्वास तोड़ सकता है, लेकिन आपके विश्वास को आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपने खुद से विश्वास किया है और वो आपका विश्वास है। लेकिन दूसरे से विश्वास करोगे तो दूसरा हो सकता है आपका विश्वास तोड़ दे। तो आपको अपने से विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना पैसा अच्छा बनाना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना। देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है जिंदगी में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्राउड के पीछे मत भागो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप जिस कठिनाई वाले रास्ते पे जाओगे तो कठिनाई आएंगी, बहुत सारे टकराव आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस दिन आप उस फील्ड में सिलेक्ट हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, जो आपकी कठिनाई है वो ही आपको एक दिन कहते हैं ना मीठा फल देगी। आपको वो ऐसा रस मिलेगा, वैसा स्वीट फ्रूट मिलेगा, आप उसका कहते हैं ना बहुत अच्छा आनंद लोगे। लेकिन वहीं अगर आपने उस कठिन रास्ते को छोड़ दिया तो आप यकीन मानो, अगर आपने 1-2 साल मेहनत नहीं किया, जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है, या फिर कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, या फिर कोई बीटेक कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो उनका कहते हैं बहुत अच्छा एक लेवल होता है थिंकिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, समझने का, दूसरे के साथ एनालिसिस करने का, प्रेजेंट करने का, और कुछ भी लर्निंग करने का कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और इसी टाइम उन्होंने एबिलिटी को अपनी को यूज नहीं किया, अन्य कामों में लगा लिया, तो आप ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए मेरे ऊपर, वो बंदा ना सफल नहीं हो पाएगा। और एक चीज बता दूं ना, अगर कोई इस बात को कहता है कि भाई मैं बहुत कम टाइम में सफल हो गया, तो यकीन मानिए बहुत कम टाइम में आदमी सफल नहीं होता है। उसके बाद देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप, मैं हुसैन बोल्ट की बात करता हूँ, हुसैन बोल्ट का मात्र 10 सेकंड का रिकॉर्ड होता है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। 10 सेकंड से भी कम है, 9 सेकंड कुछ का मान लीजिए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। तो वो उसकी मात्र उस कुछ सेकंड की मेहनत नहीं है, उसने जिस दिन से सोचा था कि मुझे एक एथलीट बनना है, उसके बाद मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, वो सब जो सोचा था वहां से लेकर और आज तक, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड मान लीजिए उसने जब बनाया था, वहां तक की जो मेहनत है वो उसके पीछे रहती है। आप सोचो ना, मेरे साथ 6 महीने की मेहनत है, 6 महीने से कभी कुछ नहीं होता है। जो भी आदमी बड़ा बनता है, जिंदगी में बड़ा करता है, तो उसके साथ जहां से उसने उस काम को सोचना शुरू किया था, उस काम के ऊपर उसने इंप्लीमेंट करना शुरू किया था, वो जहां से लेकर एंड तक की मेहनत के साथ रहती है, जिसके कारण वो जिंदगी में बड़ा बनता है, जिंदगी में बहुत बड़ा करता है। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे जो भी हो, वो एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े घर से लोग होते हैं, जो जैसे एक्टर हो गए, या फिर जो अच्छे लेवल के लोग हैं, उनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो उनको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी, तो आप भी वो काम कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। ये बात तो मैं भी मानता हूँ इस बात को, कि उनको एक कहते हैं ना रेफरेंस मिल जाता है। रेफरेंस मिलने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आप भी जानते हो कि जब कॉलेज या स्टूडेंट में जब एडमिशन हो रहे होते हैं, तो अगर आप किसी रेफरेंस से आते हो, तो आप एक वो कहते हैं ना एक आराम नहीं कह सकते उसको, कहते हैं एक तरीके से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, उसका सहारा मिल जाता है, जिसके कारण क्या है ना, आपको थोड़ा सावधानी रहती है और आपको जल्दी से काम हो जाता है, कोई भी काम होता है। अगर आप बिना रेफरेंस के जाते तो काम तब भी हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वही चीज है, जब आप बिना रेफरेंस के, बिना थोड़ा सा, बिना किसी की अप्रूवेशन के अगर आप काम करोगे, थोड़ा कठिनाई तो आएगी, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर वो स्किल है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप यकीन करिए वो आप कर जाओगे, और जरूर कर जाओगे। और आपके अंदर वो एक ऐसा कहते ना सितारा निकलेगा, आप एक ऐसे डायमंड बन जाओगे जिस दिन, तो आप चमकोगे उस चीज के ऊपर। तो आप उस चीज को समझो। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। Okay, yes, great. Thank you so much, Pritam sir, for an enlightening and more effective जी presentation सर, on the let's find out your true जी सर, potentials. Today webinar is a more power packed and informative
must attendance sessions for those who are inspiring to become a trainers or a coach. We appreciate having this muscle-areas area clarified by you, Pritam sir. Your thoughts and sparing knowledge and time with us is very helpful to us in the futures. We really appreciate that. I have a small token of our appreciations here for you, sir. Please accept it with our sincere thanks. Okay, sir. We will see you next time with the different topics. Thank you, everyone. We appreciate you being here. And again, thank you, Pritam sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.